One name which came commonly was Justice J.R. Midha, a former judge from Delhi High Court, who can speak with ease. I would not say both the languages, in Hindi and English, but I have found him, he's at ease with Punjabi also. And as they say, if you're Punjabi by heart, you are large-hearted. So large-heartedness for sharing the knowledge has always been seen. And before demitting the office from the Delhi High Court, his famous judgment on Juhi Chawla has already created a mark, and that is only a tip of an iceberg. उनकी ऐसी कई judgment हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी. And especially when I was looking through, Justice Midha is nowadays mentoring in the Galgotia University. I've seen that various judgments जिनमें guidelines दी गई, path breaking judgments दी गई, और इनसे सर से जब बात इस प्लेटफॉर्म के बियॉन्ड भी होती रही, सेशंस के बियॉन्ड, तब बात एक ही आती रही, और जो वैसे भी आजकल कई जगह बातचीत चल रही है कि the law should be simplified, which a common man can understand. And a common man can understand when the wording, drafting is simplified. And जब सर से रिक्वेस्ट करी गई कि आप सेशंस लें, तब पता चला कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी universal law books and under the mentorship of J.R. Midha, they have started a course where you can understand how to crack the judicial examination, and also the judicial thinking. Judicial thinking would also mean how an advocate can think for a particular way in a simplified manner. Unlocking of the things, unlocking of the minds is the key resource to those courses. And today's topic, because when we are talking about all this, legal reforms and transformations, इनमें कैसे changes आए जिससे चीजें simplified हों, इन सब चीजों को लेके जब जस्टिस मिड्ढा ने बोला यही आज टॉपिक लिया जाए जिसमें लैंड रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातचीत की जाए, तो द टीम ऑफ बियॉन्ड लॉ CLC एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी इमीडिएटली लैच्ड अप. इससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती जिसमें लीगल रिफॉर्म्स भी हो सकें, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में भी हो सके. और सर से बात हुई कि भाई चलो जी, जब ये कोर्स भी होगा जहां पर लीगल एक्यूमेंट्स की भी बात हुई, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट already are doing this thing, and I wish all the best on behalf of Beyond Law CLC and all those who watch us live and thereafter for this course, and we believe that it helps the society at large. Decimating knowledge is not that easy also, and not that difficulty also, but it says where there's a will, there is skill, and where there's skill, there's nothing uphill. And without taking much time, I can only say that we are enamored by the fact that Justice Midha, after demitting the office, has acceded to our request to share his knowledge. And needless to say that he always, what we say, I was just understanding a thing, they said that the best thing is life is like a pyramid, or what they say, a funnel, where if you can funnel down the last thing in a simplified manner, the base is always difficult, but at the end, the results are better. And also what we say, that the view is best on the top of the hill. And on the top of the hill for a legal acumen would be when you get the best results. So na zyada samay lete hue, I will ask sir, going by our recent times that we will be taking in bilingual, so we'll be too happy that you take the session in Hindi, English. Maybe people may not think that retirement ke baad English wala flair hi chhod diya, simple Hindi and English ka combination. So we are clarifying to the audience that it is our request that sir will be taking session in both the languages. Over to you, sir. Thank you, Vikas. Thank you very much. I welcome all the viewers who have joined this course today. And today we'll be talking on legal reforms in the education. You see, this is a, you can say this is a topic very close to my heart. Considering that on the judicial side, having spent 14 years, I noticed so many
so many infirmities in the legal system, and more particularly in the legal education, due to which I carry an impression that it is necessary to reform the legal education so that we have so that all the stakeholders in the legal system are perfect, and we are able to deliver the timely justice to all the people who approach the court for justice. Before I proceed, I would like to share my thought on the legal education itself and the legal institution for that matter. You see, whole purpose of the judicial system is to do justice to the person who approaches the court for justice. And when a person approaches the court for justice, then the job of the court, of work of the court, is to do justice. And for doing justice, they have to first find out the truth and then do justice. Because justice is truth in action. So meaning thereby we have to find out what is the truth. And the important aspect of this is that we all know how to find out the truth. From our childhood days, we all know when somebody around us speaks a lie in our family or in our circle, social circle, we all know that art. So that art as a judge has to be refined. That art of finding out the truth has to be refined. और सच पता लगाने की एक तरह से कहा जाए तो हर एक को इस चीज का पता है कि कैसे सच और झूठ को पता करना है. और ये आर्ट हमने किससे सीखी नहीं है, ये बचपन से ये आर्ट हम सबको पता है. और सवाल ये उठता है कि फिर एक लेमैन में और एक लॉयर में और जज में क्या फर्क है? फर्क ये है, जो सबसे बड़ा फर्क है वो है रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कि उसी चीज को, उसी समस्या को, उन्हीं पैरामीटर्स को जिससे हम सच को पता लगाते हैं, उसको रिफाइन करके हम जो है सच को पता करें. और एक अच्छा लॉयर बनने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो है रैशनल थिंकिंग. इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा एग्जांपल प्रोफेसर मोहन गोपाल ने अपने एक लेक्चर में दिया था. टू गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक लेक्चर में उन्होंने बुलाया था. तो उन्होंने कहा कि दो तरह का हमारा माइंड होता है. एक तो ओबीडिएंट माइंड, जो हम हर चीज को ओबे करते हैं, और एक होता है क्वेश्चनिंग माइंड. ओबीडिएंट माइंड तो वो होता है जैसे आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्डर ओबे करने होते हैं, दे आर नॉट सपोज्ड टू क्वेश्चन इट. या जैसे बच्चे जो है दे आर पेरेंट्स के घर में पेरेंट्स के सामने या अपने गुरु के सामने दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव ओबीडिएंट माइंड, नॉट टू क्वेश्चन द विजडम और डिसीजन ऑफ द पेरेंट्स. और दूसरा हो गया क्वेश्चनिंग माइंड, जिसमें आपने हर चीज को क्वेश्चन करना है. जब तक वो चीज आपको सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आप उस चीज को क्वेश्चन करते चले जाते हो, जिसके ऊपर सारी जो थ्योरी, बुद्धास फिलॉसफी, जो बुद्धा की पूरी जो फिलॉसफी है वो है क्वेश्चनिंग माइंड. बुद्धा ने कहा कि किसी चीज को आपने एक्सेप्ट नहीं करना, हर चीज को आपने क्वेश्चन करना है टिल द टाइम इट इज प्रूव्ड. डोंट बिलीव इन एनीथिंग अनलेस इट इज प्रूव्ड टू योर सेटिस्फैक्शन. तो लॉयर को हर चीज को क्वेश्चन करके रैशनल थिंकिंग करनी है. इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं जो रिसेंटली हुआ. जैसे आर्यन का मैटर था. अब आर्यन के मैटर में हाई कोर्ट से बेल हुई, लेकिन पूरा लॉ, पूरे फैक्ट्स, सब कुछ जो आर्ग्यू हुआ नीचे फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे और थर्ड लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे, सब कुछ सेम था. तो क्या फर्क हुआ आर्गुमेंट्स में? हाई कोर्ट में जाके तीन चीजों का फर्क हो गया. एक तो हो गया
बिकॉज ऑफ रैशनल थिंकिंग कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स दिए गए, उस चीज को कुछ इस तरीके से पेश किया गया जिससे जो है वो जज जो है उस चीज को कन्विंस हो गया। अदरवाइज सेक्शन भी वही साइट हुए, जजमेंट्स भी वही साइट हुई, लॉ भी वही साइट हुआ। सेकंड क्या डिफरेंस था? सेकंड डिफरेंस था जो अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल लॉयर में होनी चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल, कि कैसे वो कम्युनिकेट करता है। तो ऊपर के लेवल पे क्या फर्क आया? एक वही उसी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए एक कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक डिफरेंट थी ऑफ द सीनियर लॉयर। अब कम्युनिकेशन स्किल भी, तो पहला पहलू तो हमने देखा रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा पहलू एक अच्छे लॉयर के लिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसके अंदर सबसे पहले तो सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग। जब तक आप सुनोगे नहीं पूरी बात दूसरे की, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? दूसरा, सुनने के बाद सोचना, बोलने से पहले सोचना, बिना सोचे नहीं बोलना। तो आपने सुनने के बाद सोचने की कला, सोचने के बाद फिर बोलने की कला। फिर बोलने के भी बहुत तरीके हैं, एक तो रिस्पेक्टफुल वे है, एक डिसरिस्पेक्टफुल वे है, एक ऑर्डिनरी वे है, एक स्पीकिंग विद इमोशंस है। तो एक अच्छे लॉयर में जो अदा होती है वो इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने की होती है जिससे जो है वो उसी बात को जो नीचे की अदालत में दो या तीन लेवल पे जो है लॉयर नहीं कन्विंस कर पाया, वो एक लॉयर ने उसको कन्विंस कर दिया। सो मीनिंग देयर बाय कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब पहले आपने क्लाइंट से कम्युनिकेट किया तो क्लाइंट इंप्रेस हो जाए, फिर आपने जज से कम्युनिकेट किया, जज इंप्रेस हो जाए, फिर उसी के अंदर आ जाता है आर्ट ऑफ रीडिंग द माइंड। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अगर अपने एक्सपीरियंस को देखें, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये है कोर्ट में कि कम्युनिकेशन स्किल्स का बड़ा भारी लैक है इन कोर्ट के अंदर। पीपल लैक फर्स्टली दे विल नॉट लिसन कंप्लीटली, पूरी बात नहीं सुनेंगे, पूरी बात सुन ली तो उसको रिएक्ट करने से पहले सोचेंगे नहीं, फिर बिना सोचे रिएक्ट कर दिया, फिर आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड है ही नहीं, फिर स्पीकिंग विद इमोशंस ही नहीं है, बिल्कुल ड्राई इमोशंस के साथ आप बोलते जा रहे हो। जब आप इमोशन से बोल रहे हो देन यू विल कीप ए प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, more particularly if nothing else, especially the little smile on your face so that the atmosphere remains pleasant. So दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक अच्छा वकील बनने के लिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिससे हम एक परफेक्ट लॉयर बन सकता है वो है कि लॉ की फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। लॉ पढ़ना एक अलग चीज है, लॉ के फंडामेंटल क्लियर होना एक अलग चीज है। इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से देखें। एक तो ये है, जैसे हमने मान लीजिए ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ना शुरू किया, तो एक तरीका तो ये है कि हम उसके सेक्शंस को पढ़ना शुरू करें, उसको इंटरप्रेट करें और उसका केस लॉ देखें। दूसरा ये है कि हम पीछे जाएं कि क्या सिचुएशन थी जब ट्रेडमार्क लॉ नहीं था, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम अराइज हुई जिसकी वजह से लॉ की जरूरत पड़ी। तो अगर आप बिल्कुल पीछे जाएंगे, जब ये लॉ नहीं था तो ये सिचुएशन आई कि भाई एक आदमी जो एक ट्रेडमार्क अपना मार्क होल्ड कर रहा है, हर आदमी ने उसी मार्क से बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो ओरिजिनल आदमी का सामान जो स्टैंडर्ड वाला है उसको लेना चाह रहा था, अब वो उसको ट्रेस ही नहीं कर पा रहा कि वो कौन कहाँ पे है वो मैन्युफैक्चरर। और ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जिसने उसका नाम डिस्कवर किया, अडॉप्ट किया और जिसने उस पर गुडविल बनाई और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, उसका वो भी सफर कर रहा है, बिकॉज हर आदमी उसी नाम से बेच रहा है। मान लीजिए ट्रेडमार्क लॉ नहीं होता तो हर आदमी ब्रिटानिया के नाम से बिस्किट बना देता। तो वो सिचुएशन आई जिसको कवर करने के लिए सोसाइटी ने फिर ये लॉ बनाया कि भाई ट्रेडमार्क लॉ बनाया जाए, ताकि जिस आदमी का ट्रेडमार्क है उसको रजिस्टर किया जाए और जिसके पास रजिस्ट्रेशन है उसकी जो वायलेशन करी है उसको रोका जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो हर लॉ को अगर आप पीछे की तरफ जाएं तो वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। कोई सिचुएशन सोसाइटी में अराइज हुई जिस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए हमने वो लॉ बनाया। तो अगर हम उस एंगल से बैक से चलेंगे कि शुरू में क्या प्रॉब्लम थी, क्या लॉ आया और फिर उस लॉ को बनाने, उस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए क्या लॉ बनाया गया, फिर उस लॉ में क्या कमियां थी,
फिर उन किन किन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या अमेंडमेंट की गई और आज क्या लॉ है, अगर हम पहले इस तरीके से एक फंडामेंटल ऑफ लॉ क्लियर करें, तब हमें लॉ की अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट लेवल की होगी एज कंपेयर टू गोइंग थ्रू दी सेक्शंस and breaking them into pieces and then understanding them. So इसको अगर हम सम अप करें इसको, तो एक अच्छा लॉयर या एक अच्छा जज बनने के लिए 3 चीजें बहुत ही जरूरी हैं। पहली रैशनल थिंकिंग, दूसरी जो है कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा फंडामेंटल्स ऑफ लॉ जो है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम देखें कि हमारी लीगल एजुकेशन में सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं होती। देयर इज नो ट्रेनिंग एक्सेप्ट कि एक वो मूट कोर्ट एंगेज किया जाता है, और उस मूट कोर्ट में भी सिर्फ गाइडेंस जो दी जाती है वो उसकी लॉ रिसर्च के ऊपर और सेक्शंस के ऊपर और लॉ के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल जिस बच्चे के अंदर जितनी है वो उतनी उसको डेवलप करता है, लेकिन जिस बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर नहीं है उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि वो कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल एक्सेल करे। और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है जो डेवलप की जा सकती है, लेकिन क्योंकि हम कोई ट्रेनिंग देते हैं इसलिए हर लॉयर जो लॉ करके निकलता है उसके पास इनहेरेंट जितनी कम्युनिकेशन स्किल थी उसी पे रिलाई करके वो आगे प्रोसीड करता है। विद रिजल्ट जो टॉप लॉयर निकल जाते हैं उसके अंदर जो इनहेरेंट ही कम्युनिकेशन स्किल थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इस लॉ इंस्टीट्यूट का या एजुकेशन सिस्टम की कंट्रीब्यूशन थी कि हमने उसको वो कम्युनिकेशन स्किल सिखाई। सिमिलरली सेकंड, अगर हम देखें रैशनल थिंकिंग भी जो है एक सब्जेक्ट अपने आप में है, और इस रैशनल थिंकिंग जो हमारे स्किल ओरिजिनली हमारे अंदर है इसको भी हम डेवलप कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है किसी तरह की नहीं दी जाती लीगल इंस्टीट्यूट्स में जिससे इस स्किल को डेवलप किया जाए। थर्ड हम आ जाए लॉ टीचिंग में भी जो हम नॉर्मली एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उसमें फंडामेंटल्स में अभी थोड़ी इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि हमारी टीचिंग फंडामेंटल से लिंक हो और बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो भी ये लॉ क्यों बनाया गया, इस लॉ का क्या पर्पस था, और वो पर्पस आज हमने अचीव कर लिया या नहीं किया। जैसे मान लीजिए आप क्रिमिनल लॉ अगर आप देखना शुरू करें और लास्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स देखें, जिसमें लॉ कमीशन ने इतनी सारी जो है उन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज की, उनका कि हमारे इतनी सारी इस क्रिमिनल लॉ में कमियां है और इसको इंक्लूड किया जाए, और इतने सुंदर तरीके से उन्होंने एनालाइज किया पूरे वर्ल्ड का लॉ और सब कुछ। उससे क्लैरिटी आती है कि हमारे सिस्टम में हालांकि वो सारी उनकी सजेशंस नहीं इनकॉर्पोरेट हुए अभी तक, लेकिन अगर उसको हम देखें कि क्रिमिनल लॉ शुरू में कैसे डेवलप हुआ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे लॉ डेवलप हुआ, और आज वो लॉ कहाँ खड़ा होता है, उसमें क्या कमी है, और कैसे इस लॉ को हम फर्दर इंप्रूव करके आगे इसको कर सकते हैं, तो एक लॉ की अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल पे होगी। तो ये 3 एक मेजर मेरे ख्याल से रिफॉर्म्स की जरूरत है लीगल एजुकेशन में, जिससे जो है हम एक जो है परफेक्ट लॉयर जो है एक बन सकता है। अब एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आप देखेंगे कि एक डिफरेंट एंगल मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, जो आई थिंक बहुत लोगों ने ये महसूस किया होगा इस एंगल से या नहीं किया होगा, ये आप देखिएगा डिस्कशन के बाद। पहला डिफरेंस लीगल प्रोफेशन में और बाकी सब प्रोफेशंस में ये है कि लीगल प्रोफेशन में हम उन्हीं चीजों को डेवलप कर रहे हैं, स्किल्स को, जो हमारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। पहली स्किल हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सेकंड स्किल हम हर वक्त हम जजिंग कर रहे हैं। हम जो है जरूरी नहीं कि जो लोग जज बन के कुर्सी पे बैठे हैं वही जजिंग कर रहे हैं, हम हर मिनट हर स्टेप पे हर आदमी को जो हमारे सामने आ रहा है उसको जज कर रहे हैं। सो वी नो द आर्ट ऑफ जजिंग, इट इज नॉट ए आर्ट और स्किल जो बड़ी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम सबके अंदर वो, किसी के अंदर कम होगी किसी में ज्यादा होगी, लेकिन सबके अंदर वो स्किल है। तो पहली हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड टू जज, वी ऑल डू इट होल डे whether we are judge or not. Number 2, we all communicate whole day, whether do it rightly or wrongly, but we are doing communication whole day. Third, whole day we are thinking rationally.
whether we are doing it in a perfect manner or imperfect manner is separate thing, but we are whole day doing rational thinking. And then knowledge of law, there is a presumption in law that everybody knows the law. So meaning thereby that nobody can take a defense in court of law that I didn't know this law existed. I didn't know that committing theft is punishable, because law expects everybody, every citizen to know the law. And ignorance of law is no defense. So therefore, the ordinary things which all of us know, we are only sharpening that ability and knowledge which we already have, which is not there in any other occupation. एक आदमी अगर chemistry में है, physics में है, that every day we are not dealing with it. So therefore, compared to that, the study of law and the legal education is, to my mind, the easiest thing on the planet. Second, एक बहुत बड़ा difference between legal profession and all other professions is, हर profession में, let's assume we take a example of a car manufacturer. तो कार मैन्युफैक्चरर को कितनी मुश्किल है एक कार बना के डिलीवर करनी पड़ेगी टू टेक द मनी फ्रॉम द कस्टमर. मान लीजिए 10 लाख की कार है, तो 10 लाख की कार बनाने के लिए उसके 9 लाख के आसपास या समथिंग लाइक दैट उसका लगा, और या उससे भी कई बार कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी कारों की कंपनियां जो इंडिया में आई और बड़ी सक्सेसफुल थी वर्ल्ड वाइड, दे हैड टू वाइंड अप. लास्ट वन टू लीव इंडिया वाज आई थिंक जनरल मोटर्स, और उससे बहुत पहले आई थिंक फिएट लेफ्ट, उससे पहले और कई कंपनीज जो है वो इंडिया में आई, लेकिन जिस कीमत पे वो कार बनाते थे उतनी कीमत पे कार बिकती नहीं थी. बट किसी से वो 10 लाख रुपए लेने के लिए उसको आपको कार देनी पड़ती है. इसी तरह से मान लीजिए आप एयरलाइंस ही चला रहे हो, तो उसको 5,000 रुपए की टिकट में उसको दिल्ली से बॉम्बे ले जाना पड़ेगा, चाहे उसमें कुछ प्रॉफिट हो या आपकी लागत उससे 5,000 से ज्यादा आ जाए. बिल्डर हो तो उसको मकान बना के देना पड़ेगा. लेकिन लॉयर का वर्क अगर आप देखें तो लॉयर क्या करता है, पहले तो अपने क्लाइंट से बातें करता है, फिर बातें करके उसको लॉ अप्लाई करके रैशनल थिंकिंग करके कम्युनिकेशन स्किल से अपना वो व्यू एक्सप्लेन करता है बातों में. फिर जब कोर्ट में केस करना है तो उन्हीं बातों को टाइप करके कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, और फिर कोर्ट से जज से भी उसने बातें की, आर्गुमेंट्स को इन लिटरल टर्म. इट इज ओनली कम्युनिकेशन. और अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे क्या रिजल्ट क्या मिला, तो उसका रिस्पॉन्स ये है कि भाई हमने तो कोर्ट के सामने आर्ग्यू कर दिया और जज साहब को समझ में आ गया तो रिलीफ मिल जाएगा, नहीं तो जो डिसीजन आएगा उसकी अपील करेंगे. सो मीनिंग देयर भाई आपने अल्टीमेटली क्या किया, आपने पहले जो है क्लाइंट से बातें की, फिर जज से बातें की, और पैसे कितने मिल गए बातें करने के? बातें करने के इतने पैसे मिल गए जितने किसी और प्रोफेशन में जो है वो पैसे उतने नहीं बनते. अगर आप टॉप लॉयर्स हमारे कंट्री के देखें तो अगर आप उसको कंपेयर करें तो एक तरफ आप वो मिंट मशीन लगा दें और एक तरफ उनको करें तो दे विल मैन्युफैक्चर दी और क्रिएट द मनी फास्टर देन व्हाट द मिंट मशीन कैन मेक. सो मीनिंग देयर भाई आपने सिर्फ जो है बातें करने के पैसे लिए, तो इसके मतलब बातें करनी, या इसको और दूसरे तरीके से कहें कि आपको बातें बनानी आनी चाहिए. बातें करने की कला इतनी मधुर होनी चाहिए कि जिससे आपने बात की, आप अपने एक्सपीरियंस से भी देखिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो जिनसे आप बात करते हो, उनका बात करने का तरीका इतना इंप्रेसिव है कि वो जब आपको मिलते हैं तो आप उनसे और मन करता है कि और बातें करें. और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो जब बात करते हैं तो आप थोड़ी देर में मन करता है कि भाई यहां से किसी तरह से जो है ये मीटिंग क्लोज की जाए. तो मीनिंग देयर भाई कि बात करने का तरीका इतना मधुर होना चाहिए, इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि आप जिससे बात करें वो हिप्नोटाइज हो जाए आपकी बात से. तो ये एक पहलू जो है लीगल प्रोफेशन का, इस एंगल से अगर आप देखो
तो लीगल प्रोफेशन तो सबसे आसान प्रोफेशन हो गया कि आपने जो काम करना है ये सिर्फ बातें बनाने का काम है। इस एंगल से अगर आप देखो तो इससे और कोई इजियर प्रोफेशन हो नहीं सकता। दूसरा एक अलग पहलू मैं लीगल प्रोफेशन का आपके सामने रखूंगा। बहुत कम प्रोफेशन है दुनिया में जिसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो पहले दिन ही पब्लिक डोमेन में आ जाती है। एक लॉयर को अगर पूरा ट्रेन किया जाए और पहले दिन वो केस आर्ग्यू करे तो ही कैन आर्ग्यू लाइक he can be trained to argue like the top lawyer of the country on first day in the first case. और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसी दिन it will come in public domain and he will be recognized that this person has argued the first case before the court and his performance is equal to the top lawyer of the country. कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिसके अंदर जो फर्स्ट डे परफॉर्मेंस होती है वो पब्लिक डोमेन में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट में एक जना जो है वो टेस्ट मैच में अगर सिलेक्ट हो गया और उसकी फर्स्ट डे परफॉर्मेंस पब्लिक डोमेन में आ गई, फर्स्ट डे ही उसने अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दी देन ही बिकम्स नंबर 1, और फर्स्ट डे उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पाई और उसने बिल्कुल ही क्रिटिकल वो गलतियां कर दी, चाहे किसी भी तरीके से वो सिलेक्ट हुआ हो, देन ही इज टोटली ही गोज आउट ऑफ द टीम। सिमिलरली अगर आप देखो तो film industry also to large extent, there also your performance comes in public domain on day 1. Therefore there is a possibility of your extraordinary growth and recognition on day 1 which is not there in all other professions. एक डॉक्टर या एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट जो वर्क कर रहा है, he is working on that matter in his office for that particular client, not for the whole world. His performance is not seen in the whole world, which is there in the case of a performance of a lawyer. Therefore, considering that this difference, to my mind, if the law institutes, if the legal education is given to the students in such a manner, if their communication skills are developed extraordinarily well, communication skill, rational thinking, fundamentals of law, and a law student is trained to argue the case as a top lawyer of the country on day 1, then it can make a marked difference, and therefore he will not have to struggle for 15 years to be recognized as a good lawyer. We can produce good lawyers on day 1. So this is a major difference to my mind, which if it is incorporated in the legal education, then we will be in a position to produce the top lawyers in the country without much difficulty. एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो सामने देखने में आया कि एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को अगर बोला जाए, एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को फर्स्ट डे अगर उसके घर वाले ही कहें कि जाओ भाई ये जो है ये सूट फॉर रिकवरी का केस फाइल करो, नॉर्मली मैंने कई बार लोगों से पूछ के देखा, डे 1 अभी उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली किसी के अंडर, सिर्फ लॉ ग्रेजुएट किया है कि भाई आप ये सूट फॉर रिकवरी फाइल करके आइए, तो वो सूट फॉर रिकवरी नहीं फाइल कर सकते। कहते नहीं जी अभी तो हमें समझना पड़ेगा। सिंपलेस्ट केस ऑफ रिकवरी दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू फाइल। उस बच्चे को कहा जाए जाओ भी ये एफआईआर फाइल करके आओ और ये क्रिमिनल केस फॉलो अप करो, ये समन आ गया पहली डेट पे, सो दे आर नॉट अवेयर कि पहली डेट पे कोर्ट में क्या होगा। तो काफी इसमें इंट्रोस्पेक्शन किया और ये सोचा भी क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि आप बाकी फील्ड में देखिए, एक डॉक्टर जिसने एमबीबीएस किया उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो वो उसको ट्रीट कर सकता है, वो दवाई दे सकता है भी इसको ये दवाई दे दो ये बीमारी है इसको। एक इंजीनियर जिसने इंजीनियरिंग की है वो इंजीनियरिंग करके अगर घर में एक कमरा बनाना हो वो कमरा डाल सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है। एक आर्किटेक्ट भी आर्किटेक्ट डिग्री लेने के बाद जो है वो उसके अंदर जो है नक्शा बना सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री मिलते ही तब तक वो जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकता है। लेकिन एक लॉयर
जो है वो LLB की डिग्री के बाद फर्स्ट डे बिना ट्रेनिंग के वो केस फाइल नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि कहाँ कमी रह गई हमारी लीगल एजुकेशन में? कमी ये रह गई कि हमने इतने सारे लॉज तो पढ़ाए, बट उनकी इंटीग्रेशन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उसमें काफी कमी रह गई। इसको सिंपल तरीके से समझें तो हम किसी को ड्राइविंग थ्योरेटिकली सारी पढ़ा दें और एग्जाम में वो लड़का टॉप कर ले 100 आउट ऑफ 100, लेकिन फिर हम उसको कहें भी ये लो अब तुम गाड़ी चलाओ, तो गाड़ी चला पाएगा? वो गाड़ी नहीं चला पाएगा, क्योंकि हमने जो उसको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी, थ्योरेटिकल नॉलेज तो उसकी 100% है, एग्जाम में भी उसने 100 स्कोर किया, नॉलेज पूरी है, लेकिन हमने उसको गाड़ी के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दी। तो एक ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मूट कोर्ट सिस्टम जो है ये सफिशिएंट है टू इम्पार्ट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट? इसके ऊपर दो व्यूज है। एक व्यू तो यह है कि मूट कोर्ट में हम सिर्फ उसकी ओरेटरी स्किल डेवलप कर रहे हैं प्लस लीगल रिसर्च डेवलप कर रहे हैं, और ओरेटरी स्किल भी डेवलप नहीं कर रहे हैं, उसको लीगल रिसर्च पे गाइडेंस दे रहे हैं, और प्लस हम उसको हर स्टूडेंट को वो भी डेवलप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं भी ये मूट कोर्ट सिस्टम है, इसमें जिसने ऑप्ट करना है वो इसके लिए ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले। तो जो बच्चा जिसमें ऑलरेडी ओरेटरी स्किल अच्छी है, जिसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंटेशन अच्छी है, वो लॉ रिसर्च अच्छी करके वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो बच्चे जिसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं थी, ओरेटरी भी नहीं थी, उसको हमने कल्टीवेट नहीं किया, और वो बच्चा जिसने पार्टिसिपेट किया और सक्सीड किया और टॉप किया, उसके अंदर तो ऑलरेडी ओरेटरी स्किल बाय इनहेरेंट उसके अंदर थी, और डेवलप तो हुआ आर्गुमेंटेटिव स्किल। वो तो फाइनल आर्गुमेंट्स की स्टेज है, जब बच्चे ने वो केस आर्ग्यू किया या अपलेट स्टेज में, और बाय द टाइम हम उसको नॉर्मली सारा लॉ दे देते हैं एज इफ द मैटर इज बीइंग आर्ग्यूड इन द टॉप कोर्ट, जहां पे लॉ सेटल होना है। वेरेज जरूरत क्या थी उसको, लेकिन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देने के लिए क्या जरूरी था कि उसको ये बताया जाए कि जब क्लाइंट आए तो कैसे रेलेवेंट फैक्ट्स को पहले तो इरेलेवेंट से आप सेपरेट करोगे। जब कोई केस आए तो सबसे पहले तो ये समझा जाए कि भाई इस पॉइंट पे लॉ क्या है, उस लॉ के क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको माइंड में रखते हुए पहले तो रेलेवेंट फैक्ट्स को और इरेलेवेंट फैक्ट्स को सेपरेट किया जाए। फिर रेलेवेंट फैक्ट्स को सामने रख के पहले तो लॉ अप्लाई करके उसको एडवाइस दी जाए, और अगर केस बनता है और वो इंस्ट्रक्ट करता है केस फाइल करो, तो फिर इरेलेवेंट फैक्ट्स को हटा के रेलेवेंट फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करके और एक प्लेन ड्राफ्ट की जाए, जिसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स हो, एविडेंस ना हो, और वो प्लेन बना के सपोर्टेड बाय वेरिफिकेशन, सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, प्रॉपर कोर्ट फी स्टैंप लगा के ये देखा जाए कि लिमिटेशन पीरियड से बार्ड तो नहीं है और कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, और फिर उस कोर्ट में जाके फाइल किया जाए। फाइल करने के बाद वो कोर्ट में लगेगा, फिर कोर्ट उसको सिविल कोर्ट में, सिविल केस अगर है तो उसमें समन इशू करेगा, फिर प्रोसेस फी फाइल की जाए, फिर प्रोसेस फी के बाद वो समझ जो है उनकी सर्विस इंश्योर की जाए, अगर दस्ती का ऑर्डर है तो साथ में जाके प्रोसेस सर्वर की सर्विस कराई जाए, नहीं तो रजिस्टर्ड एडी या स्पीटो जो भी कोर्ट ऑर्डर करे वो किया जाए। फिर डिफेंडेंट जब आए तो डिफेंडेंट जब लॉयर को एंगेज करे तो फिर डिफेंडेंट के लॉयर की वही ड्यूटी है कि पहले तो लॉ को माइंड में रखते हुए सेपरेट करे रेलेवेंट फैक्ट्स को और इरेलेवेंट फैक्ट्स को, फिर रेलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पे देखे क्या डिफेंसेस बनते हैं लॉ में, फिर रिटर्न स्टेटमेंट बनाए, फिर वो फाइल करे रिटर्न स्टेटमेंट, फिर रेप्लिकेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स दोनों साइड्स के, फिर एडमिशन डिनायल, इश्यूज, एविडेंस, फिर फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज आई। तो इस चीज को कल्टीवेट करने के लिए जो है क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी ये है कि मॉक ट्रायल्स कराया जाए। मॉक ट्रायल में एक प्रॉब्लम दी जाए बच्चों को सिंपल, जिसमें जो है एक बच्चा प्लेंटिफ हो, वो प्लेंटिफ के एक दूसरा बच्चा प्लेंटिफ लॉयर हो, उसको वो केस एक्सप्लेन करे, फिर वो रेलेवेंट इरेलेवेंट फैक्ट्स को अलग करे, फिर वो प्लेन ड्राफ्ट करे, फिर उसको फाइल किया जाए, एक प्रॉपर जो है उसके अंदर एक फाइलिंग काउंटर हो, जहां पे एक बच्चा एज ए फाइलिंग काउंटर हो, उसको रजिस्टर करें, रजिस्टर करके उसको कोर्ट के सामने पेश करें,
कोर्ट उसमें समन इशू करे और पूरे वही स्टेप्स लिए जाए जो रियलिटी में कोर्ट में होते हैं। और इस तरह से ये सारी हर तरह की प्रॉब्लम्स, सिविल केस, फिर इस तरह से क्रिमिनल केस, लेबर केस, सर्विस लॉ, रिट पिटीशन, पीआईएल, टैक्स मैटर, एक एक प्रॉब्लम बच्चे को दिया जाए ताकि बच्चे को ये क्लैरिटी रहे कि भाई कोर्ट के अंदर केस शुरू कैसे हुआ, केस चला कैसे और खत्म कैसे हुआ। तो बट ये भी एक चीज जो है इसमें, जब तक इस तरह से एक लीगल एजुकेशन ना दी जाए तब तक जो है एक बहुत बड़ा इसमें गैप रहेगा बिटवीन रियलिटी एंड द cultivating a law graduate to become a top lawyer on day one। तो ये सारी चीजों को एग्जामिन करते हुए मेरे को एक लगा कि लीगल एजुकेशन में एक बहुत बड़ा लैकुना है जिसको हम सबकी ड्यूटी है कि हम इसको लैकुना को फिल करें और एक ऐसा लीगल सिस्टम डेवलप करें जिससे हमारे देश में लीगल एजुकेशन बड़े सुंदर तरीके से डेवलप हो। तो ये एक टीचिंग का पैशन जो मेरे माइंड में ऑलरेडी था बिकॉज ऑफ माय टीचिंग एक्सपीरियंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम 89 टू 92, और उसी पैशन को कंप्लीट करते हुए और इन चीजों को माइंड में रखते हुए फिर रिटायरमेंट के बाद जो है मैं दोबारा आई हैव कम बैक टू द टीचिंग प्रोफेशन और टीचिंग शुरू की मैंने आफ्टर रिटायरमेंट on 12th July I started teaching in Galgotias University। और वहां पर भी पर्पस ये था कि किस तरह से डेवलप किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप की जाए, रैशनल थिंकिंग कैसे डेवलप की जाए, मॉक ट्रायल्स कैसे डेवलप किए जाए, फंडामेंटल्स ऑफ लॉ कैसे क्लियर किए जाए। तो इनिशियल तो एक स्ट्रेस था कि हाउ टू ये सारी चीजें सब बच्चों में कैसे जो है वो की जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत बड़े स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को ये सारी स्किल्स एट ए टाइम इम्पार्ट करना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। तो फिर रिसेंटली यूनिवर्सिटी ने, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया कि एक स्पेशलाइज्ड कोर्स शुरू किया जाए जो शुरू किया गया पहले सिर्फ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए 10 जनवरी को इनॉग्रेट किया गया ऑन जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एंड एडवोकेसी स्किल्स। और वो कोर्स जो है अब यूनिवर्सिटी ने आउटसाइडर लॉ स्टूडेंट्स और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है, जिसके अंदर जो है जो बच्चा जो है या तो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में जाना चाह रहा है या जो एक परफेक्ट लॉयर बनना चाह रहा है डे वन, ताकि फर्स्ट डे वो जाके एक वो सीनियर लॉयर की तरह, टॉप लॉयर की तरह जाके वो कोर्ट के अंदर आर्ग्यू कर सके। तो इस तरह का एक लॉयर डेवलप करने के लिए जो एक स्किल है वो उसमें इम्पार्ट की जाए, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। और वैसे आप ये देखिए कि एक जो बहुत बड़ा रीजन आप देखो अपने आसपास कि कम्युनिकेशन स्किल, रैशनल थिंकिंग जो हर एक सिटीजन के लिए जरूरी है, जो हर सिटीजन के लिए जरूरी है, वो अदरवाइज बहुत लैक कर रही है लोगों में। और इसको दूसरे एंगल से देखिए कि ये तीन चीजें अगर जो है वो डेवलप हो जाए और आदमी लीगल प्रोफेशन में ना भी जाए, देन ही इज फिट फॉर ऑल टॉप प्रोफेशंस ऑफ द कंट्री। जो सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आप देखिए कि जितने हमारे कंट्री के टॉप पॉलिटिशियंस हुए हैं इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद भी, वो सारे लीगल प्रोफेशन से आए हैं। क्यों आए? बड़ा सिंपल रीजन है कि उनके कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो पॉलिटिक्स में भी कम्युनिकेशन स्किल ही तो चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? रैशनल थिंकिंग। देश चलाने के लिए एक आदमी उच्च पद पे बैठा हो तो उसको क्या चाहिए? रैशनल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड नॉलेज ऑफ लॉ आल्सो, which will help a person to take all actions legally। तो ये तीन स्किल हो तो अगर आप देखो यहां पे भी और इवन यूएसए में भी, इवन इन यूएसए लीगल प्रोफेशन से कितने सारे लोग टॉप प्रेसिडेंट्स बने वहां पर, क्योंकि उसके अंदर जो कला आ गई, जो आर्ट आ गई, उससे आदमी किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकता है।
अच्छा, उसको भी छोड़ दीजिए। एक आदमी मान लीजिए लॉ करके सिर्फ एक बेयर लॉ डिग्री ली जाए विदाउट एफर्ट, और एक जिस लॉ ग्रेजुएट में कम्युनिकेशन स्किल और रैशनल थिंकिंग और नॉलेज ऑफ लॉ बड़ी अच्छी है, तो चाहे बिजनेस में चला जाए, मान लीजिए टॉप अपनी वो कंपनी चला रहा है, he will be better, he will head the company better. कम्युनिकेशन स्किल तो एज एक सेल्समैन को भी बिना कम्युनिकेशन स्किल के कैन ही सेल ए आइटम। कम्युनिकेशन स्किल हो तो एक सेल्समैन चीज को भी बेच सकता है। तो मीनिंग दैट भाई एक सफल जिंदगी जीने के लिए भी अगर एक लॉ ग्रेजुएट ये 3 चीजें कर ले और ना भी जाए लीगल प्रोफेशन में 1 मिनट के लिए, ना लॉयर बने ना जज बने, ही विल बी, जिस भी फील्ड में जाएगा ही विल एक्सेल इन दैट फील्ड as compared to all other people because of the quality of communication skill and rational thinking. So, और ये सबसे जरूरी चीज है। इसके बगैर, और बड़ा सिंपल देखिए आप कि 2 लॉयर, अब एक और डिफरेंस देखिए, एक और बड़ा मेजर डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन ए ऑर्डिनरी लॉयर एंड ए डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट। अब लॉयर जो है आफ्टर ए स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ प्रैक्टिस, फिर वो हाई कोर्ट में और या सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है कि मुझे जो है सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेट कर दिया जाए। तो कोर्ट उसकी काबिलियत को और सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेट कर देता है। सवाल ये उठता है क्या फर्क है ऑर्डिनरी लॉयर में और सीनियर एडवोकेट में? सीनियर एडवोकेट पहली बात तो कोई भी चीज फाइलिंग नहीं कर सकता, यानी कि प्लेंट ड्राफ्ट भी नहीं करेगा और प्लेंट फाइल भी नहीं करेगा अपने नाम से। वो जो है वो बाकी लॉयर करेंगे जो डिजिग्नेट नहीं है। नंबर 2, वो क्लाइंट से डायरेक्टली भी डील नहीं करेगा। तो उसका क्या फर्क पड़ा कि जो क्लाइंट आया उसको एक लॉयर पे आया, उसने केस समझा, उसने ड्राफ्ट किया, उसने फाइल किया, फाइल करके जब आर्गुमेंट की स्टेज आई तो उसने सीनियर लॉयर को एंगेज किया। तो सीनियर एडवोकेट का क्या काम है? सिर्फ बहस करने का। मीनिंग देयर भाई, और सीनियर एडवोकेट क्या करता है कि कल अगर मैटर लगा हुआ है तो आज वो लॉयर जाके, जो हैंडलिंग लॉयर है या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो लॉयर जाके उसको ब्रीफ करता है कि भाई ये केस है, ये आपने कल आर्ग्यू करना है। तो मीनिंग देयर भाई की बात तो वही उसने बताई लॉयर ने कि जी ये केस आपको आर्ग्यू करना है इस तरीके से। उसी चीज को उसने अपने तरीके से मोल्ड करके रैशनल थिंकिंग से कुछ ऐसे आर्गुमेंट उसने डेवलप किए जिससे जो है वो जज कन्विंस हो गया। तो अल्टीमेटली सीनियर एडवोकेट में क्या कला हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो दूसरे में नहीं थी, वो थी कम्युनिकेशन स्किल। उसी बात को उसने इस तरीके से रखा जिस तरीके से, और ऐसे वो आर्गुमेंट्स दिए उन्हीं बातों को जिससे जो है वो जज कन्विंस हो गया। बात करने का तरीका, तो बात करने का तरीका, और जो है फिर दूसरी कला क्या है कि एक बात करने का तरीका, और फिर आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड ऑल्सो, और कैसे केस को स्टीयर करना है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर वन शुड ऑल्सो नो द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, हाउ टू रीड द माइंड। कैसे जो है कोर्ट के अंदर माइंड को रीड किया जाए, क्लाइंट के माइंड को रीड किया जाए, जज के माइंड को रीड किया जाए। ये सारी कला अगर आ जाए, जो बहुत आसान है। अगेन मैं एक सिंपल तरीके से लीजिए, एक आदमी पायलट बन रहा है और फ्लाइट चला रहा है, कितनी नॉलेज उसने गेन की, या एक आदमी एरोनॉटिक इंजीनियर है वो कर रहा है, या एक आदमी वहां समुद्र में पनडुब्बी में काम कर रहा है, शिप पे काम कर रहा है। उन सब कामों को देखो तो ये काम सबसे आसान काम है। इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने गोल्फ की गेम खेली हो या उसके बारे में जानते हो, वो इस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे कि बाकी सारी गेम्स के अंदर हमें जो है बॉडी की एनर्जी यूज करनी पड़ती है, एफर्ट बहुत करना पड़ता है। जैसे क्रिकेट है, पूरी बॉडी एनर्जी से भरी हो और पूरी बॉडी की पूरी फोर्स यूज करो, तभी आप अच्छे क्रिकेट खेल पाओगे ना। क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है,
हर गेम के अंदर आपको इतना एफर्ट करना पड़ता है और इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी बॉडी डेवलप होनी चाहिए, तभी आप उस गेम में एक्सेल कर पाके टॉप पे हो। इसके अगेंस्ट एक गेम है गोल्फ की, जिसके अंदर सबसे पहली प्रिंसिपल ये है कि आपने एफर्ट नहीं लगाना। यू आर नॉट टू यूज द बॉडी एनर्जी। सो मीनिंग दैट भाई एक 20 साल के यंग लड़के के बजाय एक 90 साल का बूढ़ा आदमी जो है वो बेटर गोल्फ खेल सकता है। और 20 साल का लड़का अगर एनर्जी लगाएगा तो बॉल दूर नहीं जाएगी, बॉल यहीं गिर जाएगी। और बिना एफर्ट के अगर आपने सिर्फ टेक्निक लगाई तो वो बॉल जो है 200 फीट पे चली जाएगी। तो नंबर 1 एफर्ट नहीं लगाना, नंबर 2 जोर नहीं लगाना, नंबर 3 उसके लिए बॉडी की एनर्जी की जरूरत नहीं है, नंबर 4 सिर्फ टेक्निक समझ में आ जानी चाहिए। और वो टेक्निक क्या है कि, और सारी गेम्स जो दुनिया भर की हैं वो सारी राइट हैंडेड है। आपको राइट हैंड से एनर्जी लगानी, क्योंकि बहुत एनर्जी की जरूरत है इसमें, क्योंकि आपने जीरो एनर्जी पे खेलना है, सिर्फ टेक्निक से खेलना है। तो दिस इज ए गेम विच हैज टू बी प्लेड विद लेफ्ट हैंड। दूसरा, इसमें सिर्फ आधी बॉडी यूज करनी है, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट आर्म, और अपने राइट हैंड से और राइट लेग से पूरी एनर्जी आप विड्रॉ कर लेते हो। यू एज्यूम योर सेल्फ टू बी ए पिलर of left hand and left leg, left arm, left side of the body, and right is only supporting you, and you make a swing, and with that swing the energy is developed and universal energy is picked up, and you transform the universal energy। और जो बॉल अदरवाइज अगर अपने हाथ से फेंको तो 10 फीट भी नहीं जाती या 20 फीट नहीं जाती, वो 200 से 300 फुट तक चली जाती है, 300 फीट। किस चीज से? सिर्फ टेक्निक से। और यहां पर भी अब हम वापस 1 मिनट के लिए इसको कंपेयर कर रहे हैं। हम इसको कोर्ट में कहते हैं तो वर्ड यूज करते हैं बहस करो, बट ये हमारे कंट्री में ही है जहां पे बिल्कुल बहस जो है ना बिल्कुल फोर्स और एनर्जी से की जाती है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखो, अगर आप प्रोसीडिंग देखो, अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो जो एक मैटर चल रहा था, जो लाइव जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसकी स्क्रिप्ट, वहां पे दे नॉर्मल बात करते हैं जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। सो मीनिंग दैट भाई कि आपको कोई एफर्ट नहीं करने की जरूरत इतना ज्यादा, इतनी एनर्जी या इतना एफर्ट जैसे बाकी गेम्स में हम यूज कर रहे हैं वो नहीं करना। आपको तो एक गोल्फ के गेम की तरह एक टेक्निक यूज करते हुए विदाउट एनर्जी यू हैव टू जस्ट प्ले द गेम। और बातों करने के कितने पैसे बन गए, इससे आसान काम क्या होगा कि आपको सिर्फ बातें बनाने के पैसे मिल गए। कितने पैसे मिल गए? और देखो दुनिया में बाकी काम आप सारे कंपेयर कर लो, कितनी मेहनत का काम है। आपको कार बनानी है, एयरलाइंस चलानी है, बैंक चलाना है, इतने उसके अंदर रिस्क है, इतने उसके अंदर एफर्ट्स हैं, इतनी उसके अंदर परेशानियां हैं, वो सारी कोई भी नहीं आपको फेस करनी। कोई और बिजनेस देख लीजिए, कितनी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, कितना आपने वो किया, सारा तैयारी की, सब कुछ किया। उस दिन एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा था, मैंने कहा मान लीजिए आपने एक ऐसी कार बना ली जो सड़क पे भी चलती है और उड़ती भी है और पानी में भी चलती है, ठीक है ना। आपने बड़ी सुंदर एक कार बना ली और उसकी 10 लाख रुपए कीमत रख ली, लेकिन इससे पहले कि जैसे ही आपने लॉन्च किया, किसी आपके कंपटीटर ने बिल्कुल सेम कार में 5 लाख की लॉन्च कर दी, आपकी कॉस्ट ही 9 लाख आई थी। तो आपको तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी ना। तो कितना एफर्ट किया आपने, 9 लाख की कार बनाई, 10 में बेच रहे हो, लेकिन दूसरे आदमी ने वो 5 लाख में बना दी, तो आपको कंपनी आपकी बंद हो गई। उसकी बजाय अगर आप देखो तो आपके घर से तो कुछ भी नहीं लगा। तो और क्या किया आपने? सिर्फ एक टेक्निक की, और टेक्निक क्या की कि कैसे बात करनी है। और बात करने के तरीके का मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल दूं, इस पे बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं जिसमें वो बात करने का जो है वो हाउ टू कम्युनिकेट स्किल को डेवलप करने का तरीका है। बड़ा एक सिंपल तरीका पर आप देखिए, जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, नॉर्मली लोग जब बात करते हैं तो वो फोन पे भी बात कर रहे होते हैं, तो आप सामने
3 फुट पे बैठे हो, आपको आवाज नहीं सुनाई देती है उनकी। लेकिन हमारे यहाँ कोई आदमी फोन पे बात कर रहा है तो बाहर 10 फुट पे भी सुनाई दे जाता है, इतना एफर्ट यूज किया जाता है। नंबर 2, वर्ड्स के अंदर कितनी फ्लुएंसी, एक पॉज दिया जाता है। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल हो तो आप उसके अंदर प्रॉपर स्टेज पे आप पॉज करोगे, रुकोगे, सेंटेंस कंप्लीट करोगे, फिर इंटरप्ट करोगे तो परमिशन लेके इंटरप्ट करोगे। और कोर्ट के अंदर तो इस एटिकेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर इन सबको अगर अगेन हम समराइज करें तो देखा जाए तो ये सबसे, मैं तो इसको रेट करूंगा सबसे आसान प्रोफेशन है, लेकिन स्किल है, इसके लिए एक आर्ट है, इसके लिए एक कला है। इसको आप सिर्फ इस तरह से नहीं कर सकते कि हम जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कम्युनिकेट कर रहे हैं वैसे ही बोलते जाएं और वैसे ही सोचें जैसे रोज सोचते हैं, वैसे ही हम बहस करें कोर्ट के अंदर और वैसे ही जो है हम अपनी सारे काम करें जैसे हम कर रहे हैं तो भी हम एक सक्सेसफुल लॉयर हो जाएंगे। वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजों को माइंड में रखते हुए मेरे ख्याल से एक बहुत जरूरत है हमारे देश में कि हम लीगल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करें, जिससे हमारे देश में अच्छे वकील बने, अच्छे जज बने, अच्छे पॉलिटिशियन बने। और लॉ ग्रेजुएशन करके आदमी चाहे लॉयर या जज ना भी बने, जहां भी जाए वो एक बहुत बहुत जो है वो सक्सेसफुल सिटीजन बने। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है, अभी टाइम है हमारे पास, विकास अभी है, अभी वी स्टिल हैव हाफ एन आवर। So it's your choice. Yes, we still have some time. So around 15-20 minutes now, since All other right. people said it can be in English, I would request around 15-20 minutes the summing up could be in English so that people can also understand that. You see, I have not discussed what is lacking in our legal profession. This is what is called changing of gears. As a lawyer, what we required. From the reverse to the front. So I have now discussed what are the things which are lacking in our legal education and what is required to strengthen it and to make it as the very successful profession in this country. But one thing more which I think is necessary, which I am also imparting in the university where I have started teaching, is the art of holistic living and conscious living. You see, even if our knowledge of law is perfect, even if we have best communication skill, even if we have best rational thinking, we become the top lawyer of the country. But if we do not know how to live this life, then everything is multiplied with zero. And the art of living on this planet is not taught anywhere. And at times, most of the times, we also don't learn that art at home, because even at home, our family also lack that art. Therefore, and it is not taught in any educational institution either, at any stage. And question rises how to learn. And unless we know that art, everything is multiplied with zero. You see, yesterday there was a very nice story I heard in a discourse. There was a poor tailor in a village, good old times. And that tailor was fond of buying a lottery ticket. So every day he will buy a lottery ticket of 1 rupee and make a prayer to the God that please make me successful in a lottery. But otherwise he was living a very healthy, peaceful, and whatever he required for his livelihood he was earning. After 4 or 5 years, one day he got the lottery of 10 lakh rupees, which in good old days was equal to about 10 crore. So he said, there's no point in running this tailoring shop. He locked the shop.
He threw the key in the well. He purchased a new car, new house, and started enjoying all the luxuries, drinking all vices, and was the richest man in the village. And because of his eating habits also, drinking, eating late night, his health also deteriorated. And after a year or so, year and a half, the whole of the 10 lakh was over, and he had overspent few lakhs. So people were after him for asking for money. So he got so miserable that he jumped into the well to commit suicide. He said, life is not worth living now. So when he jumped into the well, the water in the well was less, so he could not die. And after struggling for some time, he found that key of his shop, and people pulled him out. So with the key, he opened the shop and started taking treatments and making discipline. And within few months, he came back to the same old, healthy, peaceful, regulated life, disciplined life. And he was again living a peaceful life. But he still continued buying the lottery ticket. But he used to pray to God that, look, never give a lottery to me or anybody else. It is very miserable. But still, since we all live a dual life, so he could not resist himself from not buying a ticket, but with a prayer that don't give me a lottery ticket now, because that lottery ticket made my life very miserable. But after a few years, again, he got a lottery. So in that excitement, he again locked his shop, threw the key in the well, and went back to the same lifestyle. But this time, he was not fortunate enough to get a second chance to come back to his shop, and he lost his life in that chaotic situation, which resulted by that extraordinary luxuries. But since he didn't know the art of living. So moral of the story is that if we do not know the art of living the life on this planet, then however successful we may be, whether it is legal profession or any other profession, all these skills which we have discussed now, everything is multiplied with zero. So most important thing is to understand what is this life, how to live the life peacefully on this planet. Most certain thing in this world is that the next moment is uncertain. So next moment can be anything. And we all have to go through good times, bad times, pain and happiness. And if you go through Buddha's philosophy, he says pain is inevitable, but suffering is optional. So one can separate pain from suffering, which all the enlightened masters, if you see, they had developed that art of separating the pain from the suffering, because suffering is in the mind, pain is in the body or elsewhere. You see, Ramakrishna Paramhansa in the last stage had the cancer on his mouth. He could not eat. So his disciple Vivekananda told him that, sir, you are close to the goddess. Why don't you ask goddess Kali to remove this cancer? So the answer was that this cancer is to the body, but I am not the body. As you are seeing the cancer in this body, I am also seeing the cancer in this body. But most of us will live at the body level only. If we live at the body level, then everything what is happening to the body will suffer that. So many people, most of the people on this planet, they live at body level only. There are few who then from the body they upgrade to the mind level. Then there are others who live at emotion level. Then
next at intellect level, and then very few who are at the spirit level. But all this, how to live this life. Tomorrow, let's assume we are in an adversarial situation, how to deal with it and how to live the life peacefully. That art of living the life is also essential. And to my mind, it is very necessary that we should learn that art of living happily and peacefully on this planet. And one of the very nice theories, if you see, is Buddha's philosophy is different from all other religious and spiritual philosophies, in a sense that whereas in other philosophies they teach you to go to the extreme, whereas Buddha said that there are three ways to get liberated from this world. There are the two extremes and one path in the middle. You have to make a lot of effort to cross, to come out of the gate on the extremes, but it is easiest and least effort if you enter to take a middle path. He gave a very nice example of a pendulum. That a pendulum which goes to the two extremes, in the middle, if you you can't stop the pendulum at the extreme. If you hold a pendulum, it will not stop at the extreme. And if at all you have to stop a pendulum at the extreme, it will require energy to stop the pendulum there. But if you stop the pendulum at the middle, it will always remain stopped. So therefore, no effort, no energy is required if you follow the middle path. So he said one should have a middle path in all works of life, whether it is eating or whatever one professes. One should not go to the extreme, whereas the other philosophies are where we take it to the extreme. For example, a person is fasting. Somebody says that you please keep fast for 1 day or 10 days or whole day or 40 days, or you make effort. So, and very nice example was there. One of the princes came under Buddha and he stopped eating and he became totally skeleton. So Buddha told him that, look, you are gone to the extreme. I never advise anybody to go to the extreme. He said, earlier you were a prince and you are living on the other extreme of luxuries. Now you are on this extreme. He gave the example of a sitar. He said, in this sitar, is it possible to bring out the music if the wires are tight or they are very light? The prince said no. He said the music will only come if there is a balance. So if you come in the middle, it is very easy. So of course, there are other theories also and so many things. One can follow any route. There are so many routes to live the life peacefully on this planet. We may follow any of the routes, any of the theories, but ultimately we should know how to live peacefully on this planet. So this is again one of my, and there's a very nice, at the end I will close. There's a letter written by, when Abraham Lincoln was the president of the United States, 16th president from 1861 to 1865. He wrote a letter to the headmaster of the school in which his son was studying. And this letter, to my mind, is very important, particularly for the students, teachers, parents. I'll just read few lines before closing. Lincoln writes to the headmaster, he will have to learn, I know, but all men are not just. All men are not true. But teach him also that for every scoundrel, there is a hero. For every selfish politician, there is a dedicated leader. Teach him that for every enemy, there is a friend. It will take time, I know,
but teach him if you can that a dollar earned is of far more value than 5 found. Teach him to learn to lose and to enjoy winning. Steer him away from envy if you can. Teach him the secret of quiet laughter. Let him learn early that the bullies are easiest to lick. Teach him, if you can, the wonder of books, but also give him quiet time to ponder over the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun, and flowers on green hillside. In school, teach him it is far more honorable to fail than to cheat. It is far more honorable to fail than to cheat. Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong. Teach him to be gentle with gentle people and tough with the tough. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. Teach him to listen to all men, but teach him also to filter all he hears on the screen of truth and to take only the good that comes through. Teach him, if you can, how to laugh when he's sad. Teach him there is no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness. Very important now. Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders, but never put a price tag on his heart and soul. I'll repeat this. Teach him to sell his brawn and brain to highest bidders, but never to put a price tag on his heart and soul. Teach him to close his ears to a howling mob and to stand and fight if he thinks he is right. Treat him gently, but do not cuddle him, because only the test of fire makes fine steel. Let him have the courage to be impatient. Let him have the patience to be brave. Teach him always to have sublime faith in himself, because then he will always have sublime faith in mankind. This is a big order, but see what you can do. He is such a fine little fellow, my son. So, I think with this, I'll put rest to today's discussion. And I hope all the viewers have enjoyed today's session, where I have just put heart and soul to my own ideas regarding legal education. And my vision is that the law graduate, on completing the law, on the first day in the first case, should be able to perform what ordinarily a lawyer struggles for 20 and 25 years and then is recognized as the best counsel in the country. Similarly, a law graduate, on immediately doing law, if he is selected as a judicial officer, he should be able to impart justice like he would have done ordinarily, being adjudged as a good judge after 20 years. That should be the first shot he should play on day one, first shot on the first ball. With this vision, I have started the imparting education to the students, and I hope that I will be successful in my venture. Thank you very much. Thank you, Vikas, once again. It was a nice experience to share my thoughts on this platform. Thank you, sir. As usual, it was spot on. And what you told us, what I started at the initial stage, that funneling of the thought process is the key to succeed not only in the legal profession, but to come out of all the jargons in life. And we all remember the famous quote, trial in action, that when they say that both the judges know the truth, but it is the judge who is on the trial. And then to understand all these aspects as to how one can chisel out
I remember the saying, they say that the canvas and the paints are for everyone the same, but it is how you build it within your mind and actually put it on the canvas which makes the painting worth its price. Like what you told, that it is in fact the lawyers who can earn more than the minting machines. And in the same way, but I also learned, they say that what is the skill to succeed? He said practice. Then what he said, that what after the practice? Then he says pause to relook and revisit yourself. And then he says professional training and professional skills are which come with the flux of time. And sir, it is always a pleasure hearing you, and the ease with which you made us understand in Hindi as well as in English. It speaks the fact, and coupled with the fact that you took us to the entire historical backgrounds, coupled with the from various quotes from Abraham Lincoln and so on and on. It only shows that what importance the lawyer has, not only to study from the law books, but also beyond that. And probably that was one of the key aspects when we thought and coined with the idea of beyond law, that you also have to think beyond the law to be in the law. And it's a pleasure connecting with Galgotia University. And thank you for connecting us with Galgotia University. And we will keep on taking certain sessions where the legal acumens can actually be improved, not only as a lawyer, because as Justice Midha has rightly said, not only in India, but pan world, we have seen the lawyers are taking lead by becoming the presidents and the prime ministers and ministers, so on and on. So everyone stay safe, stay blessed. But before we part, Mr. Rathod says, is emotionally speaking by advocate to the bench necessary? So this is a question to you. Is emotionally speaking by an advocate to the bench necessary? You see, emotionally speaking is necessary always. I will go to a step further. We should speak with emotions. You see, a person who doesn't speak with emotions, the communication cannot be as effective as it is with the emotions. So therefore, one should live an emotional life. You see, I'll rather go a step further. We didn't go into depth on this aspect. You see, a child is born with his emotion heart full, no? His energy level is in the heart. In fact, a child's energy is initially at the belly, then it comes to the heart. As and when the person goes up and ego develops, then he becomes a thinking. The whole energy goes to the head. Then he loses connection to the emotions. So therefore, one should speak with emotions always, not only with the bench. Everywhere one should live with emotions. It is a separate subject. We'll discuss with it if some opportunity arises again. How to live an emotional life. That's true. The life is it's a deep sea and an ocean to understand. And when you deep dive into it, only then you can enjoy the pearls. Thank you, everyone. We can also have a session how to live the life, art of living conscious life. That is most important. That can be coined art of living and art of leaving. Yes. Right, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Namaskar.